The story, The Enemy, written by Pearl S. Buck, is a wonderful story, contains a lot of thoughts. This story is rather a thought provoking story, and this story presents duty versus love, humanity versus national loyalty, and many more ideas are there. So, who are enemies? What are their identities? Can the person from other country be considered as our enemy? Or what are their identities? What are their activities that we consider such person as our enemy, as our enemy? In this story, we will see that what are the criteria of that person being enemy, and who can be considered as an enemy, and what will be our behavior, what should be our behavior towards that enemy. Those who are fighting against us, fighting against our country, can really be considered as our enemy. Now if that person is not to be considered as our enemy, so then in what ground, or in what activities, or in what are the symptoms, what are the activities by which we can excuse that enemy? So this story is a broader explanation of this. I personally feel joy when I read this story. What a wonderful amalgamation of love versus duty. What a amalgamation of humanity versus national loyalty. A person, when you will enter into this story, then you will see that what are the activities, what are the human activities we find here, and how they suffer from moral dilemma, and how they are coming out. First of all, you must learn the basic concept of this story. In a short, I am telling you that this story, chapter name is The Enemy, and the writer is Pearl S. Buck. And then there is a list of characters. List of characters, main three characters are there, and then Dr. Sadao, very skillful, very loving and caring doctor. He is a professional doctor, but very skillful doctor. Anna, his wife, okay, very homely wife, very loving and caring ones. And then third character is that the general of Japan. Okay, now who are the subordinate characters who creates or involves in providing that the subplots, other major plots also by the side of the main plot, like Yumi. In the family of Dr. Sadao and Hana, there are certain characters like the household members, or you can say that servants. Yumi, the children caretaker, the cook, okay, and then the gardener. So they are the three persons work in the family of Dr. Sadao. And then there comes general in this story, who are the involving characters, the messengers, okay, and then assassinators. Okay, these assassinators have not contributed anything in this story, but their name comes. That's why I have written. Okay, now the story in short. अब इस जगह पे स्टोरी इन शॉर्ट हम बताते हैं कैसे. Life in America, that means Dr. Sadao studied for 8 years in America. Although he belonged to Japan, but he had gone for higher studies writing regarding what? Learning the skills of doctor in America. And he fell in love with Hana. Fortunately, this Hana was also a girl from Japan. Now, although they fell in love in America, but finally they have married in the tradition of Japan. Okay, now when they are now living after a long, when they were enjoying their happy married life, someday he discovers that both of them discovers. Tom refers to that wounded soldiers. Okay, and there was a dilemma whether this man would be saved or not, because finally he saved the man's and waits how to inform to whom, the general of the. Finally he got an opportunity, and he informed. General promised him to assassinate the persons, assassinate the soldiers, assassinate the enemy. But after that what happens, that he forgot. उसने भूल गए, और भूल गया तो फिर that means finally Dr. Sadao make a path how to escape, how to run away, and finally he ran away. So this is the gist of the story. Okay, means Dr. Sadao and Hana studied in America. They fell in love, completed their studies, married in Japan, and they are now enjoying their private or serving life in Japan. Okay, and now one day they discovered Tom, and they were in dilemma whether to serve the man or not. Finally they served and informed, but after informations, the general forget to take actions. And then what happened? Dr. Sadao made an arrangement to run away. The question arises, क्या इनको भगा देना was the right decisions? So this is all about the story, okay, and we will learn the details about it.
This story I have told you, this story tells us what? The thought, what to do, what not to do. The plot of this story is taken during the World War II. The plot, the environment during the World War II. And during the World War II, there was a fighting among countries, and the main countries here, Japan, Germany, as well as in one side America was there. Okay, when Dr. Sadao went to study America, there was no enmity for a student against any other countries like that. स्टडी के लिए कोई इस तरह जो है ओपोनेंट कंट्री का जो है एनिमिटी शो नहीं होता है, बट ही स्टडीड, ही हैड गॉन टू स्टडी बिफोर वर्ल्ड वॉर. ओके, इट वाज ए नॉर्मल टाइम. शो जापान से कौन गया था पढ़ने? डॉक्टर सदाओ वहां पे एक प्रोफेसर के घर पे रहते थे. प्रोफेसर, अच्छा, वो प्रोफेसर के घर पे एज ए पेइंग गेस्ट रहते थे. ठीक है, अच्छा, वो प्रोफेसर बहुत काइंड हार्टेड थी, प्रोफेसर की वाइफ भी बहुत काइंड हार्टेड थी, और इस तरह जो है लर्निंग करते करते वो 8 ईयर्स बिता दिए. और 8 ईयर्स में ही क्या हुआ जनाब, उनके साथ मुलाकात हुई. हाना वॉज वेरी लविंग एंड केयरिंग गर्ल. शी हैड ऑल्सो गॉन फॉर स्टडीड देयर जापान से, और उन दोनों में थोड़ा सा लव अफेयर्स डेवलप हो गया. बट हाना एंड सदाओ डिड नॉट वेड, did not marry haphazardly. Rather, they have checked their passion under control, and they came back home in Japan, and they took the consent of father. Who? Dr. Sadao took the consent, took the permission of father, and in the tradition of Japan, they have completed their marriage. Okay. Now, on the other hand, all of a sudden, there started what? War. General of that country, Japan, started searching qualified doctors. अब डिफरेंट जगह पे बैटल हो रहा है, डिफरेंट जगह पे फाइटिंग हो रहा है, राइट? तो वहाँ के जो सारे सोल्जर्स लोग, एक एक गाड़ी, एक एक वैन सोल्जर्स लोग को भेजा करते थे, और उस एक एक वैन के साथ, एक एक कैंप के साथ एक डॉक्टर भेजा करते थे. कौन? अरेंजमेंट था दैट मींस वुंडेड सोल्जर वुड बी ट्रीटेड, हील्ड, ओके, टेकन केयर. बट डॉक्टर सदाओ को जो है, डॉक्टर सदाओ को जनरल ने जाने नहीं दिया, किसी ट्रूप्स के साथ जाने नहीं दिया. उन्होंने सोचा है कि दैट मींस ही इज ऑलरेडी इन ट्रबल विद गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम, तो किसी भी टाइम ही मे बी इन नीड ऑफ व्हाट? ऑपरेशंस. और एक्सपर्ट डॉक्टर्स देश में है ही नहीं. एक है तो उनका नाम है डॉक्टर सदाओ. तो जो एक्सपर्ट डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो उनको जो है उन्होंने एक स्पेशल बिल्डिंग अपार्टमेंट देके उन्होंने रख लिया. दैट मींस द मेन सिटी में, just beside that the house of just beside the apartment of whom? General. और जनरल ने जो है इस तरह सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि दैट मींस जो अनस्किल्ड डॉक्टर है वो जाए किसके साथ, उन लोगों को भेजा जाए किसके साथ? सोल्जर्स के साथ. डजेंट मैटर, बट मेरे लिए एक अच्छे डॉक्टर पास में रहे. अच्छा, इसी तरह दिन बीतते गए, दिन बीतते गए. क्या हुआ कि एक दिन जस्ट इनको डॉक्टर सदाओ का जो हाउस है, डॉक्टर सदाओ का जो हाउस है, वो हाउस कोस्टल एरिया में है. दैट मींस ऑन द सी शोर एरिया. ओके, और वो सी शोर एरिया से जैसे घर के बरामदा से जो लोग जो है वेट कर रहे थे, या कि इवनिंग टाइम में चाय पीना या बैठ के दोनों लोग बैठ के बातें करना. ओके, इस कंडीशन में देखिए कि दूर से कोई क्रॉलिंग करते हुए आ रहे हैं. समवन वाज कमिंग विथ क्रॉलिंग. ओके, क्रॉलिंग करते हुए कोई आ रहा है, लग रहा है कि कुछ है कोरल रिफ से, और वो कोरल रिफ्स में कुछ दिख नहीं रहा है सही से. तो दोनों, बोथ ऑफ देम केम आउट, चलने लगा. चलते चलते देखा है कि दैट मींस वन मैन को डिस्कवर किया. दैट मींस समथिंग वाज देयर, एंड दैट समथिंग वाज ए वुंडेड मैन. बैक पे जो है बहुत ज्यादा बुलेट लगा है, और बुलेट खा के जो है प्रोफिशियसली ब्लीडिंग हो रहा था. ओके, जब ब्लीडिंग की वजह से दैट मींस दिस मैन वाज कंप्लीटली सेंसलेस. ओके, और जब डिस्कवर किया तो फिर जो है देखा कि दैट मींस दिस मैन वाज from American soldiers, US Navy man. Dr. Sadao was in dilemma. कौन सा dilemma? If they shelter Tom, उसका नाम था Tom. If they shelter Tom, they may be arrested as a traitors. क्योंकि वो लोग जापानीज हैं, और ये बंदा है कहाँ के? अमेरिकन सोल्जर्स. ये वॉर पीरियड है, ठीक है. तो अगर इनको शेल्टर दिया जाए, बचाया जाए, तो फिर क्या होगा? अगर ये बात लीक आउट हो जाए तो फिर क्या होगा कि दैट मींस बोथ हाना एंड डॉक्टर सदाओ विल बी कंसिडर्ड एज ए ट्रेटर, देशद्रोही. उन्होंने सोचा इफ दे हैंड ओवर, अगर वो लोग इस वुंडेड टॉम को पुलिस के हवाले कर दें तो फिर क्या होगा? दे विल किल टॉम सर्टेनली. निश्चित रूप से जो है, आखिर प्यार क्यों डेवलप हो गया? इसको बचाने के चक्कर में क्यों पड़ा है? कौन? डॉक्टर सदाओ और वो. रिमेंबर वन थिंग, एक टीचर प्रोफेशन है जो रिफॉर्म करने की कोशिश करता है, रिफॉर्म करता है, और एक डॉक्टर है जो सेव्स लाइफ. डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जो सेव्स लाइफ. इट इज देयर प्रोफेशन, इट इज देयर ऑक्यूपेशन, इट इज देयर मेन सर्विस.
और टीचर क्या करते हैं, रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी, फ्रॉम रॉन्ग टू राइट। आ जाओ, इनको बचाने का कोई टेंडेंसी नहीं था, क्योंकि ही इज कंसिडर्ड टू बी द एनिमी, क्योंकि दैट मीन्स डायरेक्ट अपोजिशंस, डायरेक्ट अपोजिशन। लेकिन फिर भी इनके दिल में क्या था कि कोई भी हो, चाहे एनिमी हो, चाहे फ्रॉम अदर कंट्रीज हो, चाहे फ्रॉम अदर सोसाइटीज हो, चाहे फ्रॉम अदर क्लास हो, डजेंट मैटर, बट फॉर डॉक्टर दे आर ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग को बचाना एक क्या है, इनका यही इनका जॉब है, सर्विस है। सो उन्होंने सोचा है कि बचाया जाए। विदाउट ऑपरेशन टॉम विल डाई, और अगर ऑपरेट नहीं किया जाए तो फिर क्या होगा, टॉम मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, इमीडिएट ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। लेकिन जब उसके हेड में दैट मीन्स कैप जो देखा, उस कैप में जब यूएस नेवी देखा, तो फिर जो है दैट मीन्स डॉक्टर सदाव अब सरेंडर बोल दिए। सारे पॉइंट्स को देखते हुए डॉक्टर सदाव सरेंडर बोल दिए। डॉक्टर सदाव सरेंडर तो बोल दिया, लेकिन क्या हुआ, हाना, हर ह्यूमन माइंड, हर केयरिंग, हर सॉफ्ट माइंड डिड नॉट अलाउ टू ड्रॉप टॉम डाई। हाना की एक ब्यूटीफुल माइंड, सॉफ्ट माइंड, ह्यूमैनिटेरियन माइंड जो है, क्या नहीं किया, टॉम को ऐसे ही छोड़ने नहीं दिया। सदाव ने पूछा, बाय द वे, अगर मैं छोड़ दूं, इसको एज इट इज छोड़ दूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप क्या करोगे? हाना रिमेन साइलेंट, और हाना के साइलेंस ही क्या है, डॉक्टर सदाव और ये दोनों लोग उठा करके लिया करके अब इमीडिएट ऑपरेशन की अरेंजमेंट कर रहे हैं। और जब अरेंजमेंट करने की कोशिश किया, और फिर इन्होंने सोचा है कि दैट मीन्स सर्वेंट्स को बुलाया जाए, सर्वेंट्स को बुला करके इनको क्या किया जाए, ऑपरेट किया जाए। उन्होंने सोचा कि दैट मीन्स दे विल हेल्प ड्यूरिंग ऑपरेशंस। तो ये जो कौन लोग हैं, जो सर्वेंट्स हैं, सर्वेंट्स यहाँ पे देखो तीनों सर्वेंट है, एक गार्डनर है, इनका नाम है माली है, ठीक है, गार्डनर ओनली मेल है, और यहाँ पे दोनों लोग लेडीज है, कुक खाना पकाने वाली है, कुक भी लेडीज है और यूमी भी लेडीज है। अच्छा, कुक खाना पकाने वाली है और यूमी दैट मीन्स केयर टेकर फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है। तो ये तीनों लोग क्या हो गया, दे हैड शोन देयर रिजेंटमेंट, एंगर। ये कैसी बात है? वो हमारी दुश्मन है, और वो दुश्मन को हमारा मास्टर इतना स्किलफुल हो गया कि दुश्मन को बचाए, और हम लोग हेल्प करें, जॉब छोड़ देंगे, काम छोड़ देंगे, फिर भी हम लोग क्या नहीं करेंगे, ये पाप है हम लोगों के लिए। ये सब कौन कहने लगा? ये सब सारे सर्वेंट्स ने कहने लगा, जॉब छोड़ देंगे, काम छोड़ देंगे, हम लोग मर जाएंगे, बिन खा के मर जाएंगे, फिर भी सही, लेकिन क्या नहीं करेंगे, ये दुश्मन को बचाएंगे नहीं। ये हमारी दुश्मन, ये हमारे गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, इसको बचाना हमारे लिए पाप पड़ेगा। कौन क्या कहा, आओ देखते हैं। फिर गार्डनर ने क्या कहा? गार्डनर तो इतना गुस्से में था, कौन? गार्डनर इतना गुस्से में था, ओल्ड मैन। इनके घर पे बहुत दिनों से जो है इनके फादर से बहुत ज्यादा ट्रस्टफुल ओबीडियंट पर्सन हुआ करते थे। गुस्से में आके जो है यहाँ का जो मुस्टैश, हाँ, जो बुकिश वर्ड है दैट मींस टेक्सुअल, ही पुल्ड हिज हेयर ऑफ हिज अपर लिप्स। यहाँ की जो है दैट मींस खींच के नोच रहा था, दैट मींस उखाड़ रहा था, अप्रूट करने की कोशिश की है गुस्से में। एंड सेड, उन्होंने क्या कहा था, देखो, ऑल दीज पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। द गन ट्राइड टू किल, गन शॉट करके जो है, गन ट्राइड टू किल दिस कार्स्ट मैन, और द सी में जो पेबल्स है, पत्थर है, पत्थर जो क्या किया, ट्राइड टू ड्रैग द वुंड, इसको जो घसीटते हुए, इसको रगड़ते हुए जो है इसको मारने की कोशिश किया। फिनिश, जो गन ने मिस कर दिया, वो चीज क्या हो गया, समुद्र में गिरा करके जो है, समुद्र इसको जो है रिवेंज लेने की कोशिश किया। और फिर बट सदाउस मेडिकल स्किल टू हील द मैन मीन्स, ये तो बुरा होने जा रहे हैं, ये तो कार्स हैं, ये श्राप है, हमारे डॉक्टर इतना बड़ा भगवान बन गया क्या? तो इन्होंने जो इस तरह जो है रिजेंटमेंट शो किया, एंगर शो किया। ओके, नाउ द कुक ने क्या किया, कुक गुस्से में घूम रहे थे, घूमते घूमते दैट मींस डिनर के लिए जो उसको फाउल कटना था, दैट मींस चिकन, ठीक है, तो चिकन की गला को दैट मींस हैन के गला को जो है इतना तेजी से उसने काटा, राइट, काटी, तेजी से कट के जो है सारे जो है ब्लड को गिरा दिया। ब्लड को गिरा करके दैट मींस स्पेशली जो गार्ड के पॉट है, सॉरी फ्लावर पॉट है, फ्लावर पॉट में पूरा जो है गिरा के रख दिए। चलो इसको बचा के रखा जाए, यही खून से हम किसका क्या करेंगे, इस पौधा को उगाएंगे फिर। तो ये जो स्टेटमेंट है, शोड व्हाट, शोड द एंगर ऑफ होम, द एंगर ऑफ कुक। चलो अब बात है, यूमी उतना रिजेंटमेंट शो नहीं किया, दैट मींस डायरेक्टली उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नर्स नहीं कर सकता, मैं नर्स नहीं कर सकती, ना इसको पानी से, ना किसी चीज से, ना बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए पाप पड़ेगा, मैं सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ। यानी कि तीनों लोग जो है, आप जो है बेटा घर छोड़ के जाने लगे। फिर
डॉक्टर सदाव सोचा है कि इन लोगों को अगर कुछ समझाया जाए बुझाया जाए तो फिर तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो लोग थोड़ा सा वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं, अगर ये लोग कोई बात को डिसाइड कर लेते हैं ना, तो उससे इन लोगों को समझाना या फिर मनाना बड़ी डिफिकल्ट होता है। डॉक्टर सदाव ने सोचा कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर सदाव को, दैट मींस टॉम को बचाया गया है, ये लोग नहीं समझेंगे। कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू से बचाया गया था? हाना के साथ बात करते हुए उन्होंने ये बताया कि देखो कोई बात नहीं, इनका जिंदगी बचाया जाए। किसकी जिंदगी? टॉम की जिंदगी। कैसे? क्योंकि ये इतना वुंडेड है, अभी तुरंत अगर इनको ऑपरेशन नहीं दिया जाएगा तो फिर मर जाएगा, लेकिन जैसे ये बच जाएगा तो फिर इसको हैंड ओवर कर देंगे टू द पुलिस एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर। बोथ ऑफ देम डिसाइडेड एंड दे हैड डन दैट। तो यहाँ तक क्लियर है? तो दैट मींस जब रिजेंटमेंट शो किया, एंगर शो किया, तो फिर इन लोगों के मन में, किसके मन में? डॉक्टर सदाव और हना के मन में थोड़ा सा फियर वर्क कर रहा था, कहीं ये बात लीक आउट ना हो जाए, और अगर लीक आउट हो भी जाएगा तो फिर क्या होगा? ठीक है, अरेस्टेड ही ना हो जाएंगे, कोई बात नहीं। एक बात सोचो जरा, ये लोग घर छोड़ दिए। कौन लोग घर छोड़ दिए? वर्कर सर्वेंट्स लोग घर छोड़ दिए, यानी कि देयर इज ए ह्यूज रिस्क दैट एनी टाइम एनीवन मे कम एंड अरेस्ट। एक तो बदनामी, इतने बड़े हाई प्रोफेशनल इंसान एज ए ट्रेटर, एज ए गद्दार टेररिस्ट हाथ में हैंडकफ पहना करके ले जाएंगे, और एक रिस्क। लेकिन फिर भी इस रिस्क को डॉक्टर सदाव और हाना ने मिलके उठाया है। आखिर क्यों? पॉइंट इज दैट लव फॉर ह्यूमैनिटी, ओनली फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। देखो यहां तक आप सोच रहे हो कि क्या इन लोगों का कोई हिडन इंटेंशन था, लाइकिंग था? क्या ये लोग अमेरिका में पढ़े हैं इसलिए? बिल्कुल नहीं, अमेरिका के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। पढ़ने गया था, पढ़ के चला आया, देयर इज नो लिंक, देयर इज नो कनेक्शन। इट इज बिकॉज ऑफ प्योरली ह्यूमन काइंड, ह्यूमन नेचर। कुछ लोग रियली दूसरों लोगों की प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स देख के खुद को रेसिस्ट नहीं कर पाता है, खुद को साइलेंट नहीं रख पाता है। और हाना की माइंड रियली शो, डॉक्टर सदाव की माइंड रियली शो, इट इज प्योर लव फॉर लविंग दिस पर्सन्स। तो अगर उनको बचा रहे हैं तो यानी कि क्या हो गया? ये तो ट्रेटर हो गया। दैट मींस दे आर नॉट शोइंग नेशनलिज्म फॉर होम कंट्री। बट नो माय डियर, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने ये सोचा है कि जैसे ये टॉम जिंदा हो जाएगा, यानी कि बच जाएगा, यानी कि इनकी ऊंड खत्म हो जाएगी, तो फिर इनको क्या करेंगे? फिर you will be, that person will be surrendered to the police as a prisoner of war। आ जाओ, फिर क्या हुआ? हाना नर्स्ड। अब देखो यहाँ पे लव वर्सेस ड्यूटी दिखाया जा रहा है, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। जब हाना नर्स करने लगा, क्योंकि सारे लोग चले गए, हाना ऑटोमेटिकली, जब ये डॉक्टर सदाव का एक क्वालिटी है कि जब वो पेशेंट को ऑपरेट करते हैं तो फिर वो दुनिया के सारे टेंशन एक्टिविटीज को भूल जाते हैं। वो ही इज टोटली अटेंटिव टुवर्ड्स दैट वुंडेड पर्सन। अच्छा, हाना जब गर्म पानी और ठंडा पानी का बाउल लेके बगल में बैठ के उनको नार्स करने लगा, डर्टी बॉडी, और फिर जो है पूरा सफाई करने लगा, तो फिर दैट मींस जब वो साफ कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे ना, तो क्लीन करते वक्त ड्यूरिंग द क्लीनिंग क्या हुआ? ये जो ब्लड वाज फ्लोइंग टू ऑफन, बार बार जो है ब्लड निकल करके। अच्छा, कुछ लोगों का ये है कि कच्चा ब्लड, यानी कि दैट मींस रनिंग ब्लड देख नहीं पाते हैं, फेंटेड हो जाते हैं, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, डजेंट मैटर। बट कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, ये वीकनेस है कि वो लोग फ्लोइंग ब्लड देख नहीं पाता है। ओके, तो हाना को घिन आ रहे थे। हाना स्टार्टेड फीलिंग व्हाट? नॉशिया। ओके, जब हाना स्टार्टेड फीलिंग नॉशिया, शी वेंट आउट एंड क्लीन्ड हर बाउल इन बेसिन। देखो इन लोगों का लव अफेयर है, किन लोगों का? हाना एंड डॉक्टर सदाव। और डॉक्टर सदाव डजंट वांट दैट फॉर एनी एक्टिविटीज हाना मे फील डिस्टर्ब। अब इमेजिन करो, एक लवर है, कौन? डॉक्टर सदाव, और उनका लविंग ऑब्जेक्ट अगर किसी वजह से ट्रबल में है तो उस लवर के मन में क्या बात चलती है? दिखाएं आपको, बहुत ही, दिस स्टोरी इज फुल लव एपिसोड इज आल्सो देयर। कैसे? एक तो देखो, दे हैड फॉलन इन लव एंड दे वेटेड देयर एंड नाउ दे कंप्लीटेड देयर मैरिज एंड नाउ, यहाँ पे देखो एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है। कैसा टेक्निक है? डॉक्टर सदाव मन में एक प्लान किया कि बेटा ड्यूरिंग ऑपरेशन आई विल फिनिश यू, ड्यूरिंग ऑपरेशन आई विल किल यू। क्योंकि गुस्सा, यहाँ पे आके उनका फिर डिसीजन चेंज हुआ। किस वजह से? बिकॉज ऑफ यू टॉम, बिकॉज ऑफ यू हाना इज इन ट्रबल नाउ, ऑल द चिल्ड्रेन आर नाउ अलोन विदाउट होम, इट इज बिकॉज ऑफ यू, आई एम इन ऑल्सो फियर। तो ये सारे कैलकुलेशन ऑन द स्पॉट पड़ गए बेटा। वजह क्या है? वजह ओनली वन रीजन वाज देयर, दैट मींस हाना वाज इन ट्रबल, वॉमिटिंग। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, हाना जब, एक बात यहाँ पे बताएं कि हाना जब वहां पे नर्स कर रही थी, तो दैट मींस जो ओपन बॉडी विदाउट शर्ट विदाउट स्लीव्स, ओके,
जब वो नर्स कर रही थी तो ये फाइन टेक्सचर, बॉडी का जो सॉफ्टनेस, फाइन टेक्सचर देख करके Ahana was behaving very sisterly like. ये बेटा, that means ये Tom was not a cruel person, was not a brutal person. इसकी fine texture देख के लग रहा है कि that means this Tom belonged to some sophisticated, some gentle family, some noble family. इनकी परिवार कोई गद्दार या brutal या cruel person नहीं हो सकता है, और ये भी बंदा cruel नहीं हो सकता है. इतना softness was there, इतना fine texture was there. That means this person was वेल केयर्ड ऑफ, वेल रियर्ड ऑफ. इनके लिए जो है एक सिस्टरली लव डेवलप हो गया. चलो ये तो बात सही है. और फिर फाइनली जो है डॉक्टर सदाव क्या करने लगा? डॉक्टर सदाव वेंट ऑन ऑपरेटिंग, और जैसे इनकी नाइफ जैसे जाके जो है बुलेट के पास पहुंचता है, इनका प्लानिंग क्या था डॉक्टर सदाव का? डॉक्टर सदाव प्लान दैट व्हेन ही विल डू द ऑपरेशन ही विल फाइनली किल. और जब ये प्रोसेस दैट मींस ही वाज स्टिल इन डिलेमा. यार जैसे ही उन्होंने दैट मींस he got that the bullet at the tip of his knife. He got the bullet at the tip of his knife that was blocked somewhere. Okay, now he was thinking to hit, he was thinking to kill, he was thinking to push, he was thinking to jab once more because he was in anger. All of a sudden there came a visualized image of his professor. You imagine here, all of a sudden during that moment when he was going to kill, all of a sudden there came a visualized memory of his professor. One professor in his anatomy class, he told doctors, ignoring a patient by a doctor is a cardinal sin. बेटा एक बात ध्यान देना, अगर आप डॉक्टर हो and you are deliberately ignoring a patient, remember this is a cardinal sin. वो पाप, वो महापाप है जो भगवान खुद क्या नहीं करता है? माफ नहीं करता है. अब डॉक्टर सदाव का हाथ रुक गया. देखो, impact of duty, love and teacher's advice. This story that means the enemy is also the story of duty, love and teacher's advice. ड्यूटी क्या है यहाँ पे? ड्यूटी क्या है यहाँ पे? ड्यूटी है उनको बचाना है. एज ए ह्यूमन बीइंग उसको बचाना डॉक्टर का काम है. लेकिन बीच में लव अफेयर्स का वो सर्टेन फीलिंग डेवलप हो गया. क्या हो गया कि इनकी वजह से उनकी लव को डिस्टर्ब हुआ है. दैट मींस हाना को डिस्टर्बेंस हुआ है, और हाना को जब डिस्टर्बेंस हुआ इन्होंने सोचा है कि बेटा को मार दे, खत्म कर दे, ये भी खत्म, सारे टेंशन का जड़ खत्म, राइट. लेकिन उन्होंने क्या हुआ, फिर तुरंत आ गया टीचर्स की एडवाइस. अब टीचर्स की एडवाइस याद आते ही सब कुछ क्या हो गया, अब सब प्लान खत्म. ये काम हम नहीं कर सकते हैं. दुनिया की हर काम उठा लेंगे, कर लेंगे, लेकिन टीचर की बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. डॉक्टर सदाव सारे किलिंग प्लान को क्विट कर दिया, किलिंग प्लान को स्टॉप कर दिया, और फिर उन्होंने बुलेट निकाल करके फिर स्टिचिंग करके बचा दिया इनको. बेटा तू किस्मत वाला है, बच गया. मन में गुस्सा था, लेकिन वो गुस्सा भी क्या हो गया, किल्ड हो गया, स्टॉप्ड हो गया. क्यों? देयर वाज द वर्ड ऑफ हुम, प्रोफेसर, एनाटॉमी क्लास. ओके, नाउ अब यहाँ तक क्लियर है. अब आ गया उसी रात को. देखो एक सच सस्पेंस, दिस स्टोरी इज फुल ऑफ सस्पेंस आल्सो. कैसे सस्पेंस है? उसी रात को ये लोग, घर पे कोई नहीं है, इनकी बेटा बेटी दैट मींस छोटे बच्चे लोग सो रहे हैं, और ये हस्बैंड एंड वाइफ नाउ इन टेंशन. भाई किसी वुंडेड पर्सन, और वो भी वुंडेड पर्सन क्या है, एनिमी है, उनको जगह मिला है. रात में दरवाजा नॉकिंग कर रहे हैं और मैसेंजर आ गए. मैसेंजर वाज फ्रॉम दैट जनरल ऑफिस, द जनरल ऑफिस. हाना सस्पेंस में आ गए थे कि क्या हो रहे हैं. मैसेंजर आके डॉक्टर से, साहब सर आई हैव कम विथ वन इंफॉर्मेशन एंड दैट इज द जनरल हैज इनवाइटेड यू टुमारो फॉर ही इज इन नीड ऑफ व्हाट, ही इज नीड ऑफ ट्रीटमेंट. कल आप चलिए और जनरल साहब को आपकी जरूरत है. बस इतनी सी बात थी और कुछ बात नहीं थी. जनरल सॉरी दैट मींस मैसेंजर जब निकल गए तो फिर इन लोगों का क्या हो गया, टेंशन ओवर हो गया. ओह इतनी सी बात है. प्रॉब्लम क्या था जनरल को? गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम था, राइट. आ जाओ. नेक्स्ट डे जब जनरल के पास जाते हैं, कौन? डॉक्टर सदाव. अभी बीच में क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है. ओके, अभी बीच में ट्रीटमेंट चल रहा है. दैट मींस ये जिंदा हो गया है. प्लानिंग क्या था इनको क्या करेंगे, इनको डिस्पोज करेंगे या हैंड ओवर करेंगे. कहाँ पे? टू द पुलिस एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर. बीच में ट्रीटमेंट चल रहा है, राइट. अब जनरल का बिहेवियर देखो. जनरल को जैसे बताया ट्रीटमेंट हो गया जनरल का, और फिर जनरल ने सारे चीज इनको बताने लगे. डॉक्टर साहब, देश की कोई डॉक्टर को हम भरोसा नहीं करते हैं, किसी को हम बिलीव नहीं करते हैं, बट आपको हम इसीलिए बिलीव करते हैं क्योंकि यू आर द मोस्ट trustworthy and skilled doctors, expert doctors. मैं और किसी को नहीं विश्वास करता है, सारे अनस्किल्ड डॉक्टर्स को मैंने भेज रखा है, बट यू. और यहाँ पे डॉक्टर सदाव देखो, यहाँ पे डॉक्टर सदाव माइंड तो उसकी सस्पेंस में है, लेकिन सदाव सोच रहा था कि कोई ऐसा प्लान, ऐसा मौका, ऐसा मोमेंट आ जाए, मैं इनको इम्प्रेस कर लूँ, किसको, जनरल को ये बात इन्फॉर्म कर दूँ. जैसे ही उन्होंने देखा है कि दैट मींस इनके हाथ के लड्डू बन गए हैं डॉक्टर जनरल, दैट मींस जनरल, तो उन्होंने, साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं, हाँ
आप बहुत अच्छे आदमी हैं, हमने एक काम कर दिया, आपको बिना इंफॉर्मेशन ही हमने एक काम कर दिया। मेरा दिल ऐसे ही जो है उसको बचाने के चक्कर में जो है, क्योंकि हम किसी को ऐसे मरते हुए नहीं देखना चाहते हैं और नहीं कर पाते, टॉलरेट नहीं कर पाते। बात क्या है, उन्होंने बताया कि सर ये सोल्जर्स मेरे घर पे हैं, उसको बचाए हैं और मेरा इरादा है कि इसको हम हैंड ओवर कर दें। बस इतनी सी छोटी सी काम है। उधर सेल्फिश वे में, कितना सेल्फिश वे में, अच्छा इतनी सी छोटी सी काम के लिए आप इतना टेंशन में रहते हो। डॉक्टर साहब, आपके घर की जो है पीछे का बैक गेट है ना, बैक गेट को आप ओपन रखिएगा और उसी गेट से एडमिशन कॉरिडोर है और उस कॉरिडोर का जो है जिस कमरे में वो सोया हुआ है उसको भी ओपन कर दीजिएगा। आई हैव ए पर्सनल परफेक्ट असैसिनेटर्स, एग्जीक्यूटर्स। अरे कितना खतरनाक हम असैसिनेटर रखे, आपको मालूम ही नहीं है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस एक काम कर दीजिएगा, पीछे का दरवाजा ओपन एंड देन दे विल डू द जॉब, फिनिश द जॉब विदाउट एनी नोटिस। आपको भी पता नहीं चलेगा, देखिएगा। चलिए ठीक है, डॉक्टर ने समझा। फिर अच्छा ठीक है, जैसा आप बेटर समझे। डॉक्टर सदाव उस दिन चले आए। आने के बाद घर पे मिसेस को नहीं बताए हैं, हाना को नहीं बताया, क्योंकि हाना इज ए वेरी काइंड हार्टेड, वेरी केयरिंग नेचर। मीन्स घर पे किलिंग होगी, ब्लीडिंग, ये सब चीज, ये बात उन्होंने नहीं कहा। ही वॉज वेटिंग, कौन? डॉक्टर सदाव वॉज वेटिंग, ही वॉज पेशिंग, हाथ पैर ऐसे चल रहे थे। ही वॉज इन थॉट। कौन सी थॉट? अरे जिस इंसान को उसने बचाया है उसी इंसान की मौत उनके साथ में, उनके सामने होने वाला है, उनके घर में होने वाला है। इट वॉज बियॉन्ड हिज इमेजिनेशन। वो सोच नहीं पा रहा था, वो हेल्प नहीं कर पा रहा था, दैट मीन्स ही कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ कि कैसे ये ऐसा। उन्होंने सोचा है कि चलो कोई बात नहीं। आउटसाइड हिज हाउस देयर वाज ए ह्यूज स्टॉर्म। अंदर भी स्टॉर्म चल रहा था, बाहर साइड में भी स्टॉर्म चल रहा था। दैट मीन्स डॉक्टर सदाव वाज वेटिंग in these conditions and he was not able to share his feelings to whom? His wife also. Finally क्या हुआ? एक दिन बीता, सेकेंड डे, थर्ड डे, 2-3 दिन बीत गया, कोई नहीं आया। इस बीच में क्या हो गया? इस बीच में टॉम हेल्दी हो गया। टॉम, देखो एक बात है, टॉम इतना अपॉर्चुनिटी मिला, दरवाजा खुला मिला, भाग के जा सकता था ना, he could run away ना, but he did not run away. He asked Dr. Sadav what was the next step of his action. Dr. Sadav उनको इतना कहते थे कि it is not your concern, you leave it, you get well soon first and then। एक हफ्ता हो गया, after 7 days क्या हो गया? जब इन्होंने देखा है कि that mission no executors, no assassinator came, एक दिन इनको क्या दिया? अपना गाउन, डॉक्टर्स की गाउन, या you can say that kimono is that national dress, you can say that that dress of Japan, किमोनो दिया, एक टॉर्च लाइट दिया, कुछ फूड दिया और अपना बोट दे करके उन्होंने कहा है कि दैट मीन्स ही मेड द पाथ टू गो, दैट मीन्स जनरल प्रॉमिस्ड एंड फिर व्हाट हैपेंस, ही मेड द पाथ टू गो। उस वक्त क्या हुआ कि उन्होंने कहा है कि बेटा अब तुम जाओ, अगर तुम्हें ट्रबल है तो डबल सिग्नल देना, और अगर कोई ट्रबल नहीं, यू हैव रीच टू द सेफ प्लेस, दैट मीन्स यू गिव सिंगल टॉर्च। जनरल से मुलाकात हो रही है। अब ये देखो, इनको भगा दिया, इनको ड्रॉप कर दिया। अभी क्वेश्चन अराइजेस, क्या डॉक्टर साहब का ये डिसीजन करेक्ट है? क्यों करेक्ट है? जब नेक्स्ट डे जनरल से मुलाकात होती है किनकी, व्हेन ही मीट्स हिम, ही टेल्स डॉक्टर साहब आई हैव फॉरगॉटन। इमेजिन हियर द बिहेवियर, इमेजिन हियर द केयरलेसनेस ऑफ डॉक्टर, इमेजिन हियर the selfish quality of whom, imagine here how careless that person might be regarding the national issue, और वो भी at the time of crisis। अब आ जाओ, क्यों ना डॉक्टर इसको कहेंगे कि बेटा तू जा, जी ले, क्योंकि दैट पर्सन कुड रन अवे। बना दिया इसको एनिमी बना दिया हमने, लेकिन ये एनिमी की तरह क्रूएल नहीं है, एनिमी की तरह ब्रूटल नहीं है। चाहता ये तो घर पे कुछ बर्बादी कर सकता था। जब कोई इंसान हमें बर्बादी के लिए नहीं खड़ा है तो फिर व्हाई शुड आई फाइट, व्हाई शुड आई डू रॉन्ग अगेंस्ट हिम? वो डॉक्टर हैं, जान बचाना उनका काम है, न कि जान से मारना उनका काम है। उन्होंने तो छोड़ दिया। ये क्या है? नेशनल लॉयल्टी। क्या वॉज इट अगेंस्ट द नेशनल लॉयल्टी ऑफ डॉक्टर सदाव एक्टिविटी को हम नेशनल लॉयल्टी के अगेंस्ट में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये इनका काम नहीं है किसी को मारना या हैंड ओवर करना। ये ऑलरेडी ही हैज इन्फॉर्म्ड। अब जिनको इन्फॉर्म किया है दे हैव वेल स्टाफ, प्रॉमिस भी किया था, उसके बाद प्रॉमिस के बाद अगर कोई बंदा भूल जाए तो हाउ कैन वी ब्लेम डॉक्टर सदाव? नॉट पॉसिबल। अच्छा देखो एक बात है, यूमी की जो गुस्सा है, यूमी की जो वो है, क्या है, जब ये बंदा भाग गए, यानी कि जिस घर पे वो सोया हुआ था, जिस घर पे रह रहा था, कौन जिस घर पे वो रह रहा था, तो दैट मींस उस घर पे आके यूमी ने बर्न्ड सल्फर टू पर्ज द रूम। इतना गुस्सा है, इतना हेट, इतना डिसलाइक है किसके अगेंस्ट में? अमेरिकन के अगेंस्ट में, टॉम के अगेंस्ट में, कि उस घर को फिर दोबारा जो है गंदगी से साफ किया, पर्ज किया, प्यूरिफाई किया। सो
और एक बात है यहाँ पे देखो, ये जो गार्डियनर्स, ये लोग जो सर्वेंट क्लास है, लोअर क्लास है, तो लोअर क्लास की जो ब्लाइंड लव है, ब्लाइंड सपोर्ट है फॉर नेशनलिज्म, उन लोगों का गुस्सा अगेंस्ट दिस wounded मैन इंडिकेट्स देयर ब्लाइंड सपोर्ट, देयर ब्लाइंड प्राइड फॉर नेशनलिज्म। इनका ठीक है, लेकिन डॉक्टर सदाव इज हाईली प्रोफेशनल, हाईली स्किल्ड पर्सन, हाईली एजुकेटेड पर्सन। अब ये हाईली एजुकेटेड पर्सन एक जज है। अब इमेजिन हियर, वो तो चाहते तो मार सकते थे, मीन्स ये मेरे नेशनल के अगेंस्ट में ये गद्दार है, तो फिर मेरा फर्ज है इसको मैं किल कर दूं। लेकिन अब इमेजिन करो, क्या रिवेंज लेकर ही किसी को, पनिश करके ही किसी को समझाना बेटर है, या फिर बिन पनिशमेंट दे के भी, या किसी का जान लेके भी, बिन जान लेके भी हम किसी को समझा सकते, बुझा सकते हैं। इमेजिन हियर, डॉक्टर सदाव ने जो कर दिखाया वो क्या है? वो टॉम फिर दोबारा कभी जापान के अगेंस्ट में वॉर नहीं कर सकता है, ना किसी जापानीज पीपल के अगेंस्ट में वो वॉर कर सकता है, नुकसान कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो एक लिटिल एक्शन इन फेवर ऑफ टॉम हैज सेव्ड द ब्रूटलिटी अगेंस्ट जापान। एक छोटा सा एक्शन किसकी तरफ से? डॉक्टर सदाव और हना की तरफ से हुआ है, इन फेवर ऑफ होम? टॉम। और टॉम ने आज दिल दिमाग से टोटली क्या कर दिया? टोटली क्विट कर दिया। किसके अगेंस्ट में वॉर करना? जापान के अगेंस्ट में। आप इमेजिन करो, किसी के अगेंस्ट में बदला लेके, या किसी को पनिश करके, किसी को क्रूएलिटी, ब्रूटलिटी शो करके आप उनको रिफॉर्म नहीं कर सकते हो। और एजुकेटेड पर्सन का आइडेंटिटी है रिफॉर्म करना, रिफॉर्मेशन लाना। आप उनको मार देते तो फिर क्या होता? उधर एग्रीवेशन और बढ़ता, रिजेंटमेंट और बढ़ता। किसके अगेंस्ट? किसकी तरफ से? अमेरिकन की तरफ से। और यहाँ पे अगर इसको बचाने के बाद अगर ये दैट मींस जनरल ने अगर इसको लेके गए होते तो कोई बात नहीं था। सिस्टम, इट वाज प्रॉपर सिस्टम। अब आप सोचो और क्या क्या चीज हो सकता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। और इतना एक्सप्लेनेशन आई थिंक इनफ फॉर सॉल्विंग दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, व्हाटसोएवर क्वेश्चन मे कम। ओके, ड्यूटी है। बट यहाँ पे और एक क्वेश्चन हम, और एक पॉइंट हम डिस्कस करना चाहेंगे कि दैट मींस लव वर्सेस ड्यूटी। दिस स्टोरी इज लव वर्सेस ड्यूटी। कैसा? लव, ड्यूटी एंड देन नेशनलिटी। हना के लिए जो प्यार था, किसके लिए, किसके मन में? हना के लिए जो प्यार था डॉक्टर सदाव के मन में, थोड़ी देर के लिए क्या हो गया था? प्यार की वजह से उसने ड्यूटी से सोच रहे थे कि ड्यूटी नहीं करेंगे, किल कर देंगे। किसको किल कर देंगे? टॉम को। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? फाइनली टीचर्स ने इसको बचा लिया। आ जाओ यहाँ पे, जो सेल्फ प्रॉब्लम, जो खुद गर्जी कहते हैं ना, दैट मींस खुद के लिए लव। जनरल किसी को लव नहीं करते थे, ना कंट्री को, ना किसी और को, खुद को लव करते थे ज्यादा। खुद की लव के लिए उन्होंने सारी चीज को किल कर रखा है। नो ड्यूटी, नो नेशनलिज्म, राइट? आ जाओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे खुद का लव है। किसका लव है यहाँ पे? ये जो सर्वेंट्स का लव है। लव क्या है? कि लव फॉर कंट्री। और लव फॉर कंट्री के लिए उन लोगों की जुबान पे इतने सारे एंग्री वर्ड्स निकला है ना। लेकिन आप ये देखो, यहाँ पे तीनों लोगों की लव डिस्प्ले हुआ है। किसका लव? सर्वेंट्स का लव। किसका लव? जनरल का लव तो ऐसा है कि हर चीज भूल गया वो अपने खुद को लव करने के चक्कर में। ओके, और इधर डॉक्टर सदाव का लव है, लेकिन डॉक्टर सदाव अपना लव को क्विट किया फॉर द सेफ्टी ऑफ होम, फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ ऑफ वुंडेड सोल्जर्स। और वो भी किसने बचाया उनको? टीचर का हेल्प, टीचर का वर्डिंग्स। ओके, सो दिस स्टोरी इज फुल ऑफ डिलेमा, दिस स्टोरी इज फुल ऑफ सस्पेंस ऑल्सो। सस्पेंस वाला पॉइंट एक बार दोहराते हैं फिर। सस्पेंस वाला पॉइंट, वो जब उनको डॉक्टर सदाव जब उनको बचाना चाह रहे थे, ओके, लेकिन जब फाइनली डिसाइड किया नहीं, इनको नहीं बचाया जाएगा, हाना रिमेन साइलेंट। बचाया तो सही, लेकिन मन में एक सस्पेंस था। इमेजिन करो, कुछ ही देर में सारे सर्वेंट्स घर छोड़ के चले गए। व्हाट सस्पेंस वाज देयर, what fear was theirs। उसके बाद ड्यूरिंग ऑपरेशन 2 देयर वाज अ ह्यूज सस्पेंस। और आफ्टर द ऑपरेशन जब रात में कौन आ गए थे? मैसेंजर्स। और मैसेंजर्स आने के बाद फिर दोबारा जो दैट मिशन नेक्स्ट नाइट को वेट कर रहे थे, अब किलिंग होने वाला है, अब होने वाला है, तब होने वाला है। बट फाइनली, सो दिस स्टोरी इज फुल ऑफ सस्पेंस ऑल्सो। दिस स्टोरी इज फुल ऑफ रिएक्शंस, एंगर्स। दिस स्टोरी इज फुल ऑफ लव एपिसोड। दिस स्टोरी इज फुल ऑफ ड्यूटी एंड व्हाट नॉट। सो दिस वे दिस स्टोरी इज रियली थॉट प्रोवोकिंग, meaningful, and I love it the most. Thank you all.